Okay, good morning everyone. So in the last lecture, we have seen how we can install Android Studio in our workstation, what is the prerequisite, and uh, how we can launch the Android SDK with Java Development Kit. Means it is a kind of bit hectic step, but on I guess 1 to 2 lecture which required to learn what was the actual process of configuring Android Studio in our workstation, in our PC or laptop. Okay, so now in this lecture we are going to see the first Android program, that is Hello World. And you don't need to type anything. The Android Studio will take care of everything. It will provide you the ready-made program. You have to just follow the simple steps to run that program and follow the means get the output which is you want. और वो होने वाला है एक virtual device पे. So we create one virtual device using Android Studio and run that our Hello World program, right? Okay, so let's start with that concept of our first Android. Here you can see Android Studio Hello World. Okay, so आप लोग ने Android Studio, you have installed the Android Studio. Okay, now open that. Now few students does not installed yet. Okay, and it is understandable क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही क्या बोलेंगे हम लोग मेमोरी स्पेस्ड, मेमोरी कंज्यूम करने वाला एप्लीकेशन है. तो जस्ट फॉलो द ट्यूटोरियल, जस्ट फॉलो और लेक्चर, कंसेप्ट समझ लो क्या है वो. ठीक है, या फिर मोबाइल में कुछ कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे वो डाउनलोड करो एंड यू कैन simply run your projects on that mobile application as well. Okay, so back to point. Now go to file in your Android Studio, go to file, then click new project. Okay, after that new project, uh, set your project name like Hello World, your application name. The name will be whichever the string you want to put on your project. Okay, then company domain is optional, then project location. Okay, include C++ support और include Kotlin support. यहाँ पे ये एंड्रॉइड वर्जन पुराना है, सो आप लोग को यहाँ पे बताएगा कि जावा या फिर चाहिए या फिर कॉटलिन चाहिए. सो यू सिलेक्ट एट दैट टाइम जावा, बिकॉज in this mobile application development in this semester we create one Android application using Java. Okay, हम लोग को Kotlin नहीं है. Kotlin is another programming language used to create Android application. Okay, but we focus on the Java. Now the next process is select phone and tablets and click next. Okay, अभी select phone and tablets means कौन से API लेवल का आपको चाहिए. देखो यहाँ पे दिखाया है Android 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच. Okay, so select the Android version with the suitable phone and tablet and click on the next. We have seen this tutorial as the beginner level. हम लोग को अभी एंड्रॉइड का कुछ पता नहीं है, हम लोग ग्राउंड से चालू कर रहे हैं. बट इफ यू वांट टू डिजाइन योर एप्लीकेशन फॉर टीवी या फिर और कुछ, तो फिर यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑप्शन है वो, जो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज सिलेक्ट द activity. Okay, see there are few activities shown in our screen. You can select whichever you want, but I recommend to select empty activity. Not recommend, I am telling you that you only select that this empty activity, because as a beginner level, as a fresher level, we don't know about the rest of the activity. Suppose आपने ये login activity select किया, so that login activity code means युजर नेम पासवर्ड का कोड ऑलरेडी तुम्हाला अँड्रॉइड स्टुडिओ मध्ये येऊन जाईल आणि तुम्हाला तो कोड कळणार नाही. एम्प्टी ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय असणार आहे, कोड फक्त कसला असणार आहे, फक्त हॅलो वर्ल्डचा कोड असणार आहे. ठीक आहे, सो यू कॅन फिगर आउट द कोड, यू कॅन लर्न द लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च यूर पर्टिकुलर एंड्रॉइड प्रोजेक्ट. ओके, अगर ये सिलेक्ट किया तो आप लोग को वो समझ में नहीं आएगा. उसके बाद देन सिलेक्ट योर एक्टिविटी नेम, मेन एक्टिविटी. अभी ये जो एंड्रॉइड प्रोग्राम है ना, वहाँ पे 3 फाइल जनरेट होने वाली है. ठीक है, मैं आगे बताऊंगा. सो एक एक्टिविटी फाइल रहेगी उसमें, सो उसका नाम आप सिलेक्ट कर लो. ओके,
एंड लेआउट नेम। ओके, पार्ट 1 खत्म हो गया। और अभी आपकी 3 फाइल जनरेट होने वाली है, ठीक है। सो वो एक्टिविटी मेन का वो आई गेस मुझे वो उसका एक्सटेंशन याद नहीं है, बट 3 फाइल रहेंगी जैसे मैंने बोला। यहाँ पे देखो ये स्क्रीन आपकी हाफ ही दिखा है हम लोग ने। यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, और एक फाइल रहेगी मैनिफेस्ट फाइल करके, एक फाइल रहेगी मैनिफेस्ट, डोंट फॉरगेट। यहाँ पे हायरार्की दिखाएंगे आपको, या फिर हम लोग वो आगे जाके प्रैक्टिकल में या फिर ट्यूटोरियल में वो आएगा ही। सो वी कैन सी एट दैट टाइम कि वहाँ पे एक मैनिफेस्ट करके फाइल रहती है, ठीक है। अभी ध्यान से नीट लक्ष्यपूर्वक ऐका की या 3 फाइल काय करतात। द फर्स्ट फाइल इज मैनिफेस्ट फाइल. द मैनिफेस्ट फाइल टेल्स users that if your Android application is dealing with some hardware part, okay, suppose you are designing the photo application uh, related app on Android Studio, your application is related to camera. So camera is a hardware device, right? So your application is gathered fetching the या फिर dealing with the hardware device, so that file are gonna store in the means uh, that interactions you are gonna listed on that कोणती ती फाईल manifest फाईल. ओके, manifest फाईल मध्ये काय असणार आहे, जो पण कोणता तुम्ही हार्डवेअर पार्ट सोबत डील करणार आहे त्या सगळ्या फाईल manifest फाईल मध्ये असणार आहे. Then the next is XML. XML is something about our web development, like HTML. The XML is extensible markup language. Okay, so your web development interactions are gonna listed on that XML फाइल. एंड जावा में क्या होगा, तो जावा में जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि लॉगिन, आई एंटर द यूजर नेम एंड आई एंटर द पासवर्ड. हाँ, सो द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज वैलिड और नॉट, इट डिसाइडेड बाय जावा. जावा तो आप लोग को पता है, जावा की यूज कर देंगे, ठीक है. सो ये 3 फाइल का वो मतलब है, ठीक है. एंड एज आई सेड, हेलो वर्ड की फाइल रेडी है. यहाँ पे देखो ये ऐसे एक बहुत बड़ी फाइल रहेगी और उसमें हेलो वर्ड, वो पूरे ये फाइल रहेगी जावा की, और उसमें हेलो वर्ड का प्रोग्राम रहेगा. ओके, सो सिंपली यू क्लिक ऑन दैट रन आइकॉन और अपर राइट सेक्शन ऑफ आईडी. ओके, आईडी के अपर राइट सेक्शन में जो रहेगा उस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर Shift+10, you can press the Shift+F10, sorry, Shift+F10 on keyboard shortcut. So your program is going to running condition. Now a pop-up window will appear titled as select development target. यहाँ पे वो आएगा ऐसा एक विंडो. So click on that new virtual device. Okay, so simply click on this new virtual device. So while you are clicking on this new virtual device, you are going to create one virtual device, one virtual Android phone. क्योंकि आप लोग डायरेक्टली मोबाइल में रन नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो एक डेवलपर ऑप्शन रहेगा, उससे आप लोग डायरेक्टली मोबाइल पे रन कर सकते हैं. डेवलपर ऑप्शन आपको पता है, वो हम लोग बाद में देखें कैसे वो करना है. फिलहाल इतना में रखो कि हम लोग को एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है थ्रू दिस पॉपअप विंडो. आफ्टर दैट now you should see a screen that shows the list of available devices. okay, यहाँ पे कितने अवेलेबल डिवाइसेस है वो दिखा रहा है सब. नेक्सस फोन के नाम दिखा है, देखो गैलेक्सी नेक्सस, ये बहुत सारे फोन के नाम दिखा है. आप लोग को फोन में वो फोन के लिए एप्लीकेशन बनाना है, इसलिए कैटेगरी में फोन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसलिए उसके रिजोल्यूशन अलग रहेंगे, नाम अलग रहेंगे, ठीक है. सो सिलेक्ट द नेम एज फोन एंड चूज द डिवाइस नेक्सस 5X. उसने वो सिलेक्ट किया, आप लोग कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स. 5X सिलेक्ट किया तो उसके देखो रिजोल्यूशन आ गए, साइज कितनी है, रेशो, डेंसिटी. ओके, नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग दिस डिवाइस क्लिक ऑन नेक्स्ट. मैंने सिलेक्ट किया तो फिर नेक्स्ट करना है. नाउ यू विल सी अ विंडो टाइटल्ड सिलेक्ट सिस्टम इमेज. सिलेक्ट द वन रिकमेंडेड API 28. ये देखो ये रिकमेंडेड है, सो वो रिकमेंडेड ही सिलेक्ट, ये इतने सारे रिकमेंडेड है. सो ये क्या है, यू विल सी अ विंडो टाइटल्ड सिलेक्ट सिस्टम इमेज. तो मतलब आपके फोन में कौन से सिस्टम हम लोग इंस्टॉल, क्योंकि वो वर्चुअल है सब. वर्चुअल डिवाइस मतलब क्या, इट इज नॉट अ फिजिकल. सो ऑन दैट वर्चुअल डिवाइस यू आर गोइंग टू लोड वन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज. ऑब्वियसली द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज इज अबाउट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो उसमें आप कौन सा ओरियो है, नोगट है, या फिर API 28 है, तो जो रिकमेंडेड है वो सिलेक्ट करो और डाउनलोड कर दो. ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर दो. जैसे ही वो आपके फोन में लॉन्च होगा,
So you can click on the next. Okay, you will be popped to a screen like show below, accept the terms and condition. वो next करने के बाद फिर आपको एक terms and conditions आएगा, तो simply उस पे accept करके next करना है. You will see a window that shows that the required files for setup are being downloaded. अभी जो required files है means on your virtual device the operating system is going to be loaded. So all the necessary files, all the required files are fetching or installing on your virtual device. So it will take some time, and वो setup download होने का ये इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है. देखो प्रोग्रेस बार भी दिखाई दे रहा है. ओके, आफ्टर द डाउनलोड इज डन यू विल सी अ विंडो एज शोन हियर. मींस पूरा होने के बाद ऐसे दिखाई देगा, बाद में फिनिश करना है. सिंपल, नथिंग स्पेशल. नाउ यू आर टेकन बैक टू द स्क्रीन यू हैव सीन इन स्टेप 5. जो आप लोग ने ऊपर दिखाई दिया था ना, जो एपीआई मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला था, वहां पे डाउनलोड किया. वो सब परमिशन सिलेक्ट करके अभी आपके ये फोन, वर्चुअल फोन में ये पूरा लोड हो गया. नाउ सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट. ओके, उसके बाद है एवीडी नेम. एवीडी क्या है, हम लोग ने डिस्कस किया है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. ये वर्चुअल डिवाइस है. हम लोग ने वर्चुअल फोन क्रिएट किया है नेक्सस 5X का. उसमें नोगट या फिर ओरियो जो कुछ भी आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लॉन्च किया है. ओके, but for now we will leave it as it is. Click finish and you will see that AVD you created is listed now under the available devices. Click finish कर दो और आपके available devices में देखो, ये available devices में जहाँ पे हम लोग ने पहले रन किया था ना, ऊपर सबसे पहले जब हेलो वर्ल्ड का विंडो जब मेन स्क्रीन आया था, at that time we click on the run. So while you are clicking on the run tab or run app option, so now you are seeing your virtual application here. Okay, Nexus 5X API. Okay, and now you should see a virtual device appeared on your screen with the desired output. और आप जैसे उस पे लॉन्च करो, वो वर्चुअल डिवाइस को लॉन्च करोगे, तो आपको ऐसा ये एक वर्चुअल डिवाइस दिखाई देगा. आपका एक फोन है, पूरा फोन जैसा हम लोग यूज करते हैं वैसे एक वर्चुअल फोन है. देखो सारे ऑप्शन है, पावर ऑफ, वॉल्यूम, रोटेट, और इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे, कैमरा है. ठीक है, सो और आपका आउटपुट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग ने वो फाइल रन की है. ओके, नाउ बिल्डिंग योर एप्लीकेशन एपीके फाइल. अभी सपोज आप लोग ने बहुत सारे कोड इकट्ठा करके एपीके फाइल बनाई है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया कैलकुलेटर का, कौन सा भी रहेगा. ठीक है, सो ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उन लोगों ने नोट दिया है. The difference between running and building the project is when we run project only the preview of our app. हम लोग सिर्फ देख सकते हैं प्रीव्यू. हाँ, it's shown not the actual app, but this is not the actual app because this is we will run on the virtual devices only. Okay, is created whereas in the process of building a project, ID produces the install APK file for us. But at the time we building one project, so APK file will generated and that will be our physical project. Now we are ready to create and locate hello world. Okay, so यहाँ पे build पे क्लिक करना है and build APK पे क्लिक करो. Okay, simple है प्रोसेस. Click on locate from the pop-up at bottom right corner. देखो यहाँ पे locate दिखाई देगा, देखो locate, यहाँ पे क्लिक करना है build करने के बाद, build APK करने के बाद. ओके, इन केस यू मिस द पॉपअप फ्रॉम द बॉटम राइट, गो टू प्रोजेक्ट विंडो. प्रोजेक्ट पे जाओ, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो सिलेक्ट प्रोजेक्ट स्कोप. यहाँ पे स्कोप सिलेक्ट करो. कहाँ गया स्कोप? फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू स्कोप सिलेक्ट करने के बाद एक्सपांड हेलो वर्ल्ड, देन एक्सपांड ऐप के बाद बिल्ड आउटपुट. यहाँ पे देखो बिल्ड आउटपुट, यहाँ पे स्कोप रहेगा ऊपर कहाँ पे, तो बिल्ड आउटपुट और एपीके में जाने के बाद डिबग. हाँ, डिबग में एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा ऐप डिबग एपीके. ओके, सो सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड after the completing this process your build is ready, your APK is ready, whatever you have written your APK is ready and you are actually. अभी ये प्ले स्टोर पे लॉन्च करने के लिए फिर अलग से प्रोसेस है, सिर्फ आप अपना APK यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो. समझ में आया? एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप लोग क्रिएट कर रहे हो जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो एक बेसिक फ्लो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग